एक आवाज़ जिसके जादू से हर सुनने वाला मुतासिर हो। एक मुमताज़ एक्टर और ब्रॉडकास्टर जिन्होंने अपने करियर में बेशुमार जौहर दिखाए। Zia Mohyuddin was born June 20th, 1931 in Faisalabad. His father, Khadim Mohyuddin, was a distinguished educator. Zia Saab graduated from Government College of Lahore in 1949. To further his career and education, he went to Australia and then to England, where he struggled to maintain himself in his efforts to fulfill his dreams of joining the prestigious Royal Academy of Theatre Arts. This is where he started his acting career. His first acting breakthrough was a stage play based on E.M. Foster's novel A Passage to India. He performed in various British and Hollywood productions thereafter, including Lawrence of Arabia. In 1969 up to 1973, Zia Saab did a string of shows for Pakistan television, of which the most popular one was the Zia Mohyuddin Show, which broke all viewership records. In 1973 to 1977, he was given the responsibility of being the director of the PIA Arts Academy. In 2003, he was given the Civilian Award for his meritorious contribution to culture and arts in Pakistan, called the Sitara-e-Imtiaz. In 2012, he also received the Hilal-e-Imtiaz. The National Academy of Performing Arts was made in 2005, and Zia Saab was given the responsibility of being the president. He continued to serve here until he passed away 13th March 2023. Zia Saab mesmerized the audience with his deep, most captivating voice and matchless eloquence in his Urdu poetry and prose recitals. He was well known nationally and internationally for his dramatic renditions of Shakespeare. Zia Saab was indeed an institution. उनकी अचीवमेंट्स को हमने जाना भी है और बेहद सराहा भी है. Although most of us are well aware of his matchless accomplishments in his illustrious career, we thought it would be interesting to know a little bit about the personal side of Zia Saab. We contacted his ex-wife, the well-known exemplary Kathak performer Nahid Siddiqui, who shared 20 years with him. She was kind enough to lend her time to shed some light on who Zia Saab was as a person. आदाब and welcome to the Mango Lounge. आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत हैं जो जिया साहब और rather the late जिया साहब की हम नफस भी रही हैं और हम नवा भी. An iconic person in her own right, she has shared the world of art and culture with the late Zia Mohyuddin, who so passionately promoted art in his illustrious career. Adab and welcome to the Mango Lounge. We have Nahid Siddiqui today. Nahid ji, welcome to the Mango Lounge. Thank you for inviting me. I'm very grateful. Wonderful to know that you have joined us today. And आज हम कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे. बहुत ही अफसोस तो पूरी कौम को क्या हर जगह के पाकिस्तानीज़ को और इंडियंस को और उन सब लोगों को है जो उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे. आपसे पूछना था नाहिद जी, आपकी मुलाकात जिया साहब से पहले कब हुई? पहली मुलाकात हमारी हुई थी यावर हयात एक प्रोड्यूसर थे लाहौर में. उनकी वालदा के यहाँ मैं रक्स सीखने जाती थी अपने उस्ताद से, महाराज गुलाम हुसैन से. तो वो उस वक्त मैं बिल्कुल हर वक्त मैं उसमें मैं होती थी. तो वो नया टैलेंट ढूंढ रहे थे. तो ज़ैल साहब को यावर भाई ने बताया कि एक लड़की है, उसको आप देखें आके. और ये अपना ज़िया मोहुद्दीन शो कर रहे थे लाहौर में, तो उसके लिए ये आए और बैठे रहे और देखा. उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें आप हिस्सा लें. तो मैंने फिर लिया. वो वापडा, जो वापडा की बिल्डिंग है लाहौर में, उसमें एक ऑडिटोरियम है. अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहां पे ज़िया मोहुद्दीन शो था. तो उसमें फिर मेरा एक शुरू के जमाने का एक रक्स हुआ था. और मेरे उस्ताद भी महाराज बैठे थे और वो बोल रहे थे.
बाबा महाराज और दूसरे भी लोग थे, मेरे ख्याल यूसुफी साहब थे उस शो में और इस तरह के। तो वहाँ मैं पहली दफा जब वो देखने आए थे, वहां मैं मिली थी। ये कौन से साल की बात है नाहिद जी? What year are we talking about? आई थिंक अबाउट 72। Oh wow, जी wonderful. तो जी। आप जब उनसे पहली दफा मिली तो आप उससे उनसे मुतासिर हुई? वो तो पहले एक नोन फिगर थे, बिल्कुल। क्योंकि उनका ज़िया मुहैद्दीन शो बहुत मशहूर था और उन्होंने बाहर भी बहुत काम किया था। तो मैं तो जाहिर है वैसे ही उनसे मुतासिर सभी थे, तो मैं भी थी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। एंड आपके ओपिनियन में जिया साहब को डांस से और रक्स के प्रमोशन के लिए उन्होंने जितनी कोशिशें की, और इन पर्टिकुलर विद यू पायल शो बना, उसके बाद जब आप व्हेन ही स्टार्टेड द पीआईए आर्ट्स एकेडमी, उसमें भी उन्होंने पहली दफा डांस को इंट्रोड्यूस किया और आप उसी में थी। तो do you feel that he had a particular preference towards promoting dance, amongst the arts, or he was as passionate about dance as he was about theater? एक्चुअली ये पायल तो उनका उसमें उस तरह का हाथ नहीं था। नहीं था। पायल एक जमान अली खान थे, बंगाली प्रोड्यूसर, कराची टेलीविजन में। अच्छा। वो क्योंकि बंगाली थे तो उन्हें बहुत शौक था, तो जो पायल था वो एक्चुअली उनका बेबी है इन अ वे। तो अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि आई वाज मैरिड टू जिया साहब उस वक्त असल में। तो अच्छा। वो जो है वो सीरियल पायल रक्स के बारे में पहली दफा पाकिस्तान टीवी पे हुआ, जो कि कथक को संजीदगी से दिखाते थे। और तो वो बाकी एकेडमी में तो था ही वो डांस एकेडमी। इट वाजंट अ थिएटर एकेडमी, ये बिल्कुल। पीआई आर्ट्स एकेडमी होती थी। जी। उससे पहले वो कुछ और थी, लेकिन पीआई आर्ट्स एकेडमी फिर जब ये शुरू हुई तो उस वक्त जिया साहब ने टेक ओवर किया। तो जाहिर है कि वो सब डांस ही था। तो इट यूज टू बी, ये भुट्टो साहब का जमाना था और हम लोग बाहर टूर करते थे ज्यादा। पाकिस्तान में तो बहुत कम परफॉर्मेंसेज होती थी, जी। क्योंकि भुट्टो साहब को ये अंदाजा था अच्छी तरह कि बाहर इसकी कितनी इज्जत है इन आर्ट्स की। संजीदा जो आर्ट्स होते हैं और डांस और ओपेरा और म्यूजिक और ये और वो संजीदा, तो नॉट एंटरटेनमेंट बट संजीदा। तो वो फिर हम बाहर करते थे। तो वही एकेडमी का जो कायम होना था वो इसी बुनियाद पे था कि बाहर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और बाहर जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे। तो वो डायरेक्टर थे और मैं कॉन्ट्रैक्ट पे एक आई वाज एन आर्टिस्ट, जो कि एक फ्रीलांस आर्टिस्ट, मुझे बुलाया करते थे लाहौर से। तो वहां पे हमने हीर रांझा बैले किया, जिसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया हीर के लिए। तो वो फिर हमने टूर किया सारा, हर जगह बाहर भी। वंडरफुल। अच्छा नाहिद जी, बताइए कि कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थी जिया साहब की जिनसे वो मुतासिर हुए, और एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट he would talk about that shaped him to be the stalwart of art that he was? जिया साहब जो थे उनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया है, मेहनत बहुत की है। बहुत। जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे तो उस वक्त तो खैर मैं, ये तो उन्होंने मुझे बताया है या लोगों से मैंने सुना है, उनसे तो बहुत ज्यादा, कि बर्तन मांजे उन्होंने शुरू में। और जिस तरह होता है कि एक राडा स्कूल, क्लासिकल स्कूल ऑफ थिएटर, शेक्सपियर थिएटर, वहां पे इनकी पूरी इन्होंने ट्रेनिंग की। और बिल्कुल। वहां पे ये जो सारी इन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की अपनी डिक्शन पे। अपना जो शेक्सपियरियन स्टाइल होता है वो बाकायदा सीखना पड़ता है, बिल्कुल। जैसे कथक है। तो इसलिए उन्हें ये अंदाजा भी था कि जो बारीकियां होती हैं फनून में, मुख्तलिफ फनून में जो बारीकियां होती हैं उनकी, उनको अंदाजा था एस्थेटिकली, और वैसे भी खुद भी प्रैक्टिकली उन्होंने किया हुआ था। तो उनको हर ऐसी चीज जिसमें कि एक मेहनत
और एक बारीकी और डेलिकेसी और एस्थेटिक्स है, वो उनको छूती थी, और वो उसको बहुत सिंसियरली प्रमोट करते थे, और बहुत मतलब है कि दिल बड़ा करके प्रमोट करते थे। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग तो फिर जाहिर है कि अगर कोई मेहनत से नहीं गुजरेगा तो उसको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि इसमें क्या चीज, क्योंकि वो तो देखिए हमारा तो पाकिस्तान में ज्यादातर बॉस कल्चर है, और बॉस कल्चर में प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिर्फ हुक्मरानी होती है एक इंसान की, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर शोबे में खुद भी उन्हें, जो भी बॉस है, उन्हें अंदाजा हो, वो खुद भी कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करते हो कि उन्हें किसी की मेहनत का अंदाजा हो। लेकिन ज़िया साहब को था, तो वो म्यूजिशियंस को भी बहुत ज्यादा सराहते थे, म्यूजिक का भी उन्हें बहुत था शौक। उनके वालिद जो थे वो असल में म्यूजिक पढ़ाते थे एफसी कॉलेज में। प्रोफेसर उन्होंने मेंशन जी किया था, हाँ, जी। as a तो वो professor। जाहिर है कि घर से भी आता है, उनकी बहन भी सीखती थी, हम्म, और वही एक चीज घर में चली आ रही होती है। बिल्कुल। हमारा जो बेटा है हसन मोयुद्दीन, वो भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा, यू नो, ही इज टेकन अ लॉट फ्रॉम हिज फादर। सुपर्बली वो टैलेंटेड। लिनेज होती है जी। जी, and he's done जी so much in music, and that's जी, absolutely स्किल, wonderful. या एब्सोल्युटली, जी जी I'm sure Zia Saab was always proud of him because to have your children follow somehow in your footsteps always gives you a sense of pride, and I'm sure he बिल्कुल। always appreciated that. अच्छा, जिया साहब ग्लैमरस भी बहुत थे और लिटरेरी फिगर भी थे। घर में वो कैसे थे? What was he like as a person at home? उनकी जिंदगी जो थी ना, वो असल में उनकी जो मैं इन आर्ट्स में जो सीरियसली लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको मैं प्रोफेशनल कहना इतना ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि जाहिर है कि देखें, एक ये जो आर्ट्स होते हैं इसमें आपको अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। तो मेरे उस्ताद भी महाराज कहते थे कि एक फन होता है बराए फन, एक फन होता है बराए जिंदगी। यानी आपकी जिंदगी में वो समोज है, आपकी जिंदगी का वो एक हिस्सा बन जाए। तो जाहिर है कि वो ये नहीं हो सकता कि कोई 9 to 5 जॉब नहीं है कि आप जाते हैं, आप जूते उतारते हैं तो आप कोई और बन जाते हैं, ऐसे नहीं होता। आप घर पे भी आते हैं तो आपका ध्यान, आपका हर चीज, आपकी घर में भी हर कोने में एस्थेटिकली हर चीज प्लीजिंग होनी चाहिए, हर चीज एक में खूबसूरती, करीना, तरीका, म्यूजिक सुनना शाम को, किताब पढ़ना, इस तरह की चीजें, वो सारी वो ही फिर होती है जिंदगी, वो अलग तो नहीं हो सकती ना। तो वो इसलिए वो मैं खुद बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, उनसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा और हो गई। लेकिन जाहिर है ये फन भी ऐसा है कथक के, उसमें आपको बारीकी के साथ लाइंस को देखना है, आप पेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, अपनी रूह के साथ उसमें रंग भर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तो ये इन फनून के साथ आती हैं, तोहफे में मिलती हैं, और अगर आप उनको एम्ब्रेस कर लें तो फिर आप मेहनत करते हैं। मेहनत के बगैर तो 99% परस्पिरेशन, 1% इंस्पिरेशन। आपने कितना सही कहा। नाहिद जी, आई एम श्योर यू हैव मेनी फॉन्ड मेमोरीज। कुछ ऐसी कोई बात हो या कोई वाकया हो जिया साहब के साथ काम करने में, एंड ऑफ कोर्स also spending time and so much of your life with him, anything that you'd like to share with us? इतना कुछ है कि इतना कुछ है कि एक चीज याद नहीं आ रही, लेकिन जी, बहुत सी चीजें हैं। मसलन उनका वक्त की पाबंदी, हर चीज में चाय पीनी है तो 5 बजे, अच्छा, ही ये वेरी है, पंक्चुअल। अभी आधा कप पीना है, और खाना पूरे 9 बजे खाना है। इस तरह की चीजें, मतलब है कि जो इंसान एक डिसिप्लिन होता है ना, जिसकी वेरी जिंदगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड होती है, वो फिर हर चीज में ये चीजें होती हैं। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि वो मेरी बहुत सी परफॉर्मेंसेस में उन्होंने आके पहले मुझे मेरा तारुफ कराया है, और बहुत इज्जत से और सब कुछ। तो अक्सर ऐसा होता था कि हम बैक स्टेज मियाँ बीवी नहीं होते थे,
बिल्कुल ऐसा होता था कि भाई प्रोफेशनल एक वो होता था। तो उसमें कई दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे मतलब हर चीज में एक सिखाने का अमल जो था, वो मैं उनसे छोटी भी बहुत थी, मतलब वो मुझसे बहुत सीनियर थे और मुझे ये भी बहुत बात पसंद थी। और हमारे घर पे अक्सर मतलब है इस तरह के लोग आते थे जिससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि मैं एक ऐसी एज ग्रुप में फॉल करती थी जिसमें कि मुझे बुजुर्गों से मिलने का भी मौका मिलता था और अपने से छोटों का भी और अपनी हम उम्र लोगों से भी। तो जैसे फैज साहब आके बैठे हुए हमारे घर, अक्सर बहुत उनका आना, फराज अहमद फराज और इन सारे लोगों से, इमरान जब भी क्रिकेट खेलने आते थे ये यहाँ पे इंग्लैंड में, तो जिया साहब जरूर इन सबको बुलाते थे और बहुत प्यार से सारे मिलते थे और बहुत अदब के साथ। तो मतलब है कि ये सारी चीजें मुझे भूलती नहीं है कि कितना कुछ मैंने इन लोगों से सीखा, ये जो सारे बुजुर्ग आते थे और ये और वो। तो फॉन्ड मेमोरीज यही हैं कि म्यूजिक मसलन उन्होंने बहुत वो सुनते थे क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, तो बहुत। वो जी, वो शाम को हमारी बैठक बाकायदा होती थी कि हम चाहे दोनों बैठें, लेकिन वो रविशंकर जी और इस तरह के लोग, उन्हें रविशंकर जी बहुत पसंद थे। तो ये, या बहुत ही ज्यादा, या मैं ले आई कोई म्यूजिक तो बाद में वो सुना। फिर ये जो उन्होंने फैज साहब को पढ़ा, वो असल में मैं क्रेडिट लेती हूँ उस चीज का कि मैंने उनसे बहुत कहा। जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे ईएमआई ने कराची से, लाहौर से कहा है कि आप आके ये पढ़िए, कराची था शायद, हाँ। तो मैं, ये हम लोग इंग्लैंड में थे, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं मुझे, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। मैंने कहा प्लीज आप जरूर पढ़ें, मेरी खातिर पढ़ें, क्योंकि आप जैसा पढ़ेंगे वो कोई नहीं पढ़ सकता। वो भी नहीं प्लीज पढ़ा। आप। जी, तो फिर उन्होंने ये बहुत मेरा मान रखा और फिर ये गए कराची। और फिर इन्होंने ये एक मुझे तो उनका बेहतरीन काम लगता है वो जो शुरू में एक फैज साहब का, बाकी तो फिर बहुत अच्छा अच्छा काम, जाहिर है वो बहुत ही खूबसूरत पढ़ते थे और सब कुछ, लेकिन बेहतरीन है। वो जो था वो दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज वो इतना खूबसूरत उन्होंने पढ़ा है। और फिर ये कि उसमें सारा जो म्यूजिक अरेंज किया था पिछला, पीछे वो अपने पढ़ंत के पीछे, वो भी सारी उन्होंने खुद ही किया। तो उनकी एक एस्थेटिक आई और एस्थेटिक सेंस अबाउट म्यूजिक, अबाउट थिएटर, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, मुझे बहुत सीखने को मिला उनसे और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और शायद इसीलिए भी मैं हमेशा जिंदगी में मैंने कोशिश की है कि मैं सीखती रहूं। तो शायद ये भी वजह थी, हमारी शादी की भी शायद वजह ये थी कि आप इम्प्रेस भी होते हैं, प्यार भी होता है, सब कुछ इकट्ठा होता है, तो वो बहुत खूबसूरत एक मिलाप था। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल यूनियन ऑफ द आर्ट्स एंड द माइंड। और उससे बेहतर क्या हो सकता है? हाउ एनविएबल इज इट दैट आप कह सकती हैं कि आप फैज से मिली हैं, फैज साहब से मिली हैं, और फराज साहब से मिली हैं, और जिया साहब तो वहीं होते थे। आई थिंक यू आर सच फॉर्चुनेट पर्सन। यस, Yes, जी I जी। wish I could say that, but I'm very नहीं fortunate नहीं, to be with सिर्फ you. मिली नहीं हूँ, बल्कि फैज साहब ने तो मुझे पूरा एक दिन हाफिज समझाने की कोशिश की, क्योंकि Hmm. जाहिर है उनको तो फारसी और सब कुछ, मैंने तो उनसे कहा मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये देखो बैठो, और पता नहीं उन्होंने 3 घंटे लगाए, इतना उनको शौक था। फैज साहब की बात बता रही हूँ। और फिर एक दफा फैज साहब जो थे वो लंदन आए हुए थे, तो मेरी एक परफॉर्मेंस थी, तो मुझे पता चला कि फैज साहब आए हुए, मिल चुकी थी बहुत दफा और बहुत प्यार करते थे मेरे करियर में, फैज साहब का बहुत हाथ। वो घर गए थे और आर्ट्स काउंसिल के वो चेयरपर्सन थे लाहौर के, जब मैंने सीखना शुरू किया। मेरे घर जाके उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि इसको प्लीज रोकना मत रक्स सीखने से।
और बाकायदा घर जाके, इतना उनका कंसर्न था। तो वो जब पता चला मुझे कि ये वहां है, लंदन में है, तो मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा कि फैज साहब शाम को मेरी, यानी आज ही शाम को मेरी परफॉर्मेंस है, तो मैं चाहती हूँ कि आप आए, मेरे चीफ गेस्ट आप हैं। तो कहने लगे अच्छा हम तो कहीं जा रहे थे, अब तुमने एकदम बताया तो हमें तो आना पड़ेगा। फिर ये आके चुपके से पीछे बैठ गए, मुझे पता भी नहीं, लोगों को भी नहीं पता कि फैज साहब आ गए, कि देयर वाज नो फस अबाउट कहाँ बैठना है, किसी ने रिसीव नहीं किया क्या है। और फैज जब मेरी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो बिल्कुल पीछे एक झमघटा लोगों का। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, तो वो फैज साहब के इर्द गिर्द लोग परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहां थे। फिर फैज साहब आए मेरे पास स्टेज पे और उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत बात जो मेरे साथ हमेशा रहेगी और रही है। वो कहने लगे ये तो हुआ जो तुम्हें कथक ने दिया, अब देखना ये है कि तुम कथक को क्या देती ओह, कितनी इन्होंने गहरी बात की। हो। जी तो फैज साहब भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और दिल को वो दिल को लगने वाली बात। जी, कि तुम अब कथक को क्या देती हो देखना ये है। तो उनकी दुआएं हैं कि जो भी है, मतलब है बस वो बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जिया मोइनुद्दीन साहब, एंड आई regard him very high in my mind and heart and soul. एंड जाहिर है प्यार होता है, ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। नाहिद जी, जब जिया साहब ने नापा बनाया, द नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन 2005, आपके ख्याल में वो उनके लिए कोई ख्वाब था जो पूरा हुआ? Was it a dream come true that he could make an academy where he could actually promote performing arts? जी जी बिल्कुल, उनका तो ये ड्रीम था ना, उनका तो था कि उनके नाम पे थिएटर हो। और उन्होंने मुझे कहा भी था बहुत दफा कि जाहिर है कि और वो लाहौर में उससे पहले काफी देर रहे, जो लाहौर में कुछ इस तरह का हुआ नहीं जिस तरह का नापा। फिर ये जनरल मुशर्रफ साहब ने इनको ये बिल्डिंग दी जो कि हिंदू जिमखाना था, और वहां पे फिर इन्होंने नापा शुरू किया, विच इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। लेकिन Beautiful. जाहिर है कि वो उसमें, अच्छा उसमें फिर ज्यादा थिएटर हुआ, हम्म, क्योंकि इनका मेन तो थिएटर ही था ना। बिल्कुल। और उस वक्त फिर हम साथ नहीं थे, क्योंकि हमारी अलैदगी हो गई हुई थी उससे पहले। तो वो मगर वहां पे थिएटर बना, वहां फिर उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया, मैंने परफॉर्म भी किया है वहां। और बहुत ही इज्जत से हमारे दरमियान इस तरह की कोई चीज कभी लगी नहीं, क्योंकि एक फनकार मेरे ख्याल में काफी आजाद ख्याल भी होता है। बिल्कुल। आजाद ख्याल का मतलब ये है कि वो घुटा हुआ नहीं होता ज़हनी तौर पे, कि उसे पता है जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन तो इसी तरह था हमारा रिश्ता, बाद में भी ऐसे लगता नहीं था कि कभी हम अलहदा हुए। लेकिन मतलब ये था जी, कि एक रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस की, एक काम की रिस्पेक्ट, एक एक दूसरे की इज्जत, वो हमेशा कायम थी। टाइम थी। कितनी खूबसूरत बात है ये। अ, जी नहीं जी, आजकल जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के हालात हैं, अ, उनके बारे में जिया साहब हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते थे, या कुछ ऐसा भी वक्त था जब उन्होंने कोई उम्मीद खो दी हो कि हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक हद से ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते, या फिर उनकी हमेशा स्ट्रगल रही है और उसी वजह से नापा बना और वो अपना काम करते गए, लेकिन उनकी अपनी सोच क्या थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं? How did he feel as a person in a country where we know that performing arts has got very little relevance? जी, I think he always thought that we are committed to mediocrity. Hmm. And he wasn't obviously talking about everybody, क्योंकि उसमें देखिए ना, जहाँ पे सोना रगड़ा जाता है वहां बुरादा भी गिरता है। तो अच्छे भी होते हैं फनकार, हमारे यहाँ बहुत मंझे हुए एक्टर्स हुए हैं,
और बहुत एक जमाना था, महमूद अली और सारे, और फिर बाद में इन्होंने नापा में उन लोगों को रखा भी, इनवाइट किया और कहा कि आके सिखाएं, जो फनकार जो थे ना अदाकारी में ज्यादातर, क्योंकि हमारे यहाँ अदाकारी जो है वो ज्यादा फिर भी एक एक दौर में उसकी जगह ज्यादा रही है। रक्स की तो रक्स को तो आज तक माना ही नहीं ना एज अ सब्जेक्ट जी हमने, तो इसलिए जो भी शुरू होता है रक्स में, मैं माफी के साथ कहती हूँ कि जाहिर है, क्योंकि एक पजीराई जब होगी और जब उसको अच्छी तरह सिखाया जाएगा प्रॉपरली, कोई इदारा होगा या कोई एक स्कूल ऑफ डांस होगा, तो फिर जाहिर है लोगों को पता लगेगा। लेकिन जब एक्सेप्टेंस ही नहीं, तो क्योंकि मुझे भी काफी अरसे पहले बैन कर दिया था जब जियाउल हक के जमाने में, उस बिल्कुल। वक्त जिया साहब भी पाकिस्तान छोड़ गए थे, क्योंकि भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो उससे पहले ही जिया साहब जो थे वो बहुत तंग आ गए थे वहां के हालात से, और बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था, तो वो मुझसे भी पहले चले गए थे इंग्लैंड, जी। और इरादा यही करके गए थे कि अब इंग्लैंड में रहे। तो हम्म। मैं पायल कर रही थी उस वक्त, तो मैंने सोचा कि मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर जब मेरा भी बैन हो गया, पूरा सीरियल था, 13 एपिसोड होते हैं एक सीरियल में, मैंने 4-5 सीरियल अब एपिसोड किए तो मुझे बैन कर दिया, और जी फिर मुझे जाने भी नहीं दे रहे थे मुल्क से, तो वो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया, मैं भी बाहर आ गई। तो वो जाहिर है कि जहाँ पे आ, देखिए ना आप, हर चीज जो है एक ऑर्डर लगे हुए ना, मतलब है कि देख लें आप, आजादी तो नहीं, हम आजाद तो नहीं हुए, हम समझते हैं कि हम आजाद हो गए, क्योंकि एक वो जैसे अनवर मकसूद साहब की मुझे बात बहुत पसंद है कि ये प्लॉट क्यों लिया था कायदे आजम ने, क्योंकि ये प्लॉट ही है कि झगड़े वाला प्लॉट होता है ना, जो जिस पे सबकी नजर होती है कि वो सारा देखें उसे कि भाई कैसे हम इसको, इसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये देखें हम कि इसमें से कहाँ क्या क्या चोरी हो सकता है। तो बिल्कुल। क्योंकि हम आज तक कथक देख लें, कथक का क्या काम है पाकिस्तान, मुझे बताएं, कुछ नहीं। मतलब मैंने जितना, अनफॉर्चुनेटली ये रुला दिया मुझे कथक ने, सिर्फ इस वजह से कि मैं ऐसी जगह से मेरा ताल्लुक है जहाँ पे इसको सिर्फ अपनाया ही नहीं जाता बल्कि रद्द किया जाता है। बिल्कुल रद्द किया जाता है। जी, रद्द किया जाता है कि ये तो भाई, मतलब मेरे रहने की वो, इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि ये वहां पे क्या होगा, सिर्फ रक्स की बात नहीं है, बस वो एक पाकिस्तान में ज्यादा फोक कल्चर जो है ना, वो शुरू से रहा है, 4 सूबों का, 4 सूबों के कॉस्ट्यूम, 4 सूबों के रक्स, जी और वो कोई उसमें, वो ही हमारे लिए पैलेटेबल है फॉर द जनरल पब्लिक, क्योंकि हमने कभी लोगों को डांस देखने की और सीखने की, उनको हमने कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी, एक्सपोजर ही तमीज नहीं। नहीं दी, तमीज तो ही नहीं। इसलिए जब लोग देखते हैं तो वो तो एकदम बौखला जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो कोई सही चीज नहीं हो रही। हालांकि ये तो हमारे सदियों से हमारा कल्चर है। और जैसे कि मैं भी आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि हमने आज़ाद मुल्क तो पा लिया, लेकिन हमने आज़ाद सोच अभी तक नहीं पाई। और नहीं, ये वो हमारी मुश्किल होता सबसे बड़ी, आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी है। डिसएडवांटेज है। नहीं जी, जी, आपसे पूछना था कि आपके जहन में जिया साहब की सबसे एडमायरेबल क्वालिटी क्या है? डिसिप्लिन। दैट ही वाज वेरी डिसिप्लिन्ड। हाँ, मुझे लग रहा है जो आपने बताया अभी कि वो किस तरह बहुत चाय ये तो नहीं नहीं, वो काम के सिलसिले में और बाकायदा, मतलब माशाल्लाह ही वाज 92, और अब तक वो सिर्फ एक दिन पहले तक काम कर रहे थे, यही, और उनको यही फिक्र थी कि मेरी रीडिंग है भाई। वो जब ये गए अस्पताल तो उन्होंने कहा कि जी आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से पैच मी आप, बिकॉज मेरी तो फैज साहब की रीडिंग है परसों, तो एक
पैशन का एक वो होता है ना कि इंसान को बस वो ही लगन हो। तो वो ही लगन थी बिल्कुल जिसने दिस एक्चुअली केप्ट हिम गोइंग। ही नेवर फेल्ट हिज एज। मैं यही बिल्कुल बता रही हूँ कि इस उम्र में तो लोग चल फिर ही नहीं सकते, लेकिन वो सुबह जाना और वही लाइब्रेरी में बैठ जाना, पढ़ना लिखना, काम करना, अपने आप को मतलब वक्त जाया नहीं करते थे वो। और बिल्कुल एक चाहे कोई भी हालात हो, ये मैंने देखा है कि लोगों को जरा सा कोई तकलीफ दुख, कोई जिंदगी में कोई ऐसी चीज आ जाए तो वो रख के बैठ जाते हैं, रोने लग जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। नहीं। और यही मैंने बहुत से फनकारों को सुना है, फनकारों के बारे में, और देखा भी है कि जो लोग कथक में मसलन बिरजू महाराज जी बताते थे कि उनके बड़े वो रियाज करते रहते थे। तो रियाज में अगर किसी ने आके बताया कि जी आपकी फैमिली में कोई बच्चा बीमार था, तो वो तो जनाब अस्पताल चला गया, तो कहने लगे अच्छा, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर उनको पता था कि वो ख्याल करने वाले हैं, उसके बाद फिर रियाज करने लग गए। तो मतलब ये है कि वो जिंदगी बराए जिंदगी उन्होंने अपने आप को इसको सौंप दिया था बिल्कुल, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो लोग करते हैं ना वो बीच का, इधर भी थोड़ा सा उतना, इधर भी, वो फिर मीडियोकर होते हैं असल में। ये है मीडियोकर की जो है ना डिस्क्रिप्शन, वो ये है कि ना 3 में ना 13 में, बस ठीक है, थोड़ी देर के लिए तालियां बजवा ली, लेकिन दिल पे असर नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में जिस बुलंदी पे जिया साहब पहुंचे उसके लिए इंटेंस पैशन की जरूरत है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि किसी इंसान के लिए, खास तौर पे आर्टिस्ट के लिए, अगर दिल में पैशन ना हो तो आपने दिल के धड़कने को जाया कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिल के धड़कने को अपनी टाइमिंग आउट हो गई आपकी, हर चीज आपकी। देखिए, रूह की ग़िज़ा कहा गया फन को। फनून जो भी हैं, जो संजीदा रियाजत मांगते हैं, तपस्या मांगते हैं, मेडिटेशन मांगते हैं, उनको रूह की ग़िज़ा क्यों कहा गया? इंसान को रूह को दाल चावल नहीं चाहिए। रूह जो है ना खुश हो जाती है कोई अच्छा हसीन म्यूजिक हो, और अगर उसके बारे में मालूमात भी हो तो इंसान पहचान भी रखता है, उससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। मैं चाहे कुछ भी हो, पता नहीं, मैंने मुझे तो लोग बताते हैं कि आपकी तो इतना कमर में दर्द, इतनी दफा वो स्लिप डिस्क हुई या टांग में दर्द हो गई, बट आप उस स्टेज पे छोड़ दो बस, तो आप पता ही नहीं चलता कि आपको कोई तकलीफ है। तो माइंड ओवर मैटर, एक तो ये बात, एक साइकोसोमैटिक, ये जब आप ये करके आप हाथ उठाते हैं तो आपकी जो फीलिंग है, ये कोई आम फीलिंग थोड़ी होती है। ये तो एक अंदर की रूह है ना जो वो हाथ उठा रही है, मैं नहीं उठा रही, क्योंकि वो अंदर रूह पे काम हो चुका। जब रूह पे काम हो चुके तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसमें एक वो किल से गुजर चुके हैं। आप कहते हैं ना तपस्या का मतलब ये है कि तपस मीन्स टू ब्लेज, एंड तपस्या, वो जो किल में पॉट डालो तो वो पकता है, वरना वो टूट जाता है। तो रियाजत का अमल, तपस्या का अमल इज टू बी इन दैट फायर ऑफ द किल एंड देन कम आउट, ताकि आप पक्के हो चुके हो। फिर आप जो भी करेंगे ठीक लगेंगे, ठीक है ना। कोई गुफ्तगू है अगर किसी का, जैसे ये नरेशन या ओरेटर जिया साहब, तो उनको कोई ये थोड़ी करना पड़ता था कि भी मैं सोचूं मुझे ये लाइन कैसे बोलनी। उनके तो अंदर से एक चीज थी, वो निकलती थी, रियाजत हुई है। वो मुझे कई दफा मुझे बताते थे कि हमें अपने वाउल्स पे कैसे काम करना पड़ता था, वो राडा में, कि ओ आ ई, ये सारी चीजें, ये किस तरह हमें अपने डिक्शन पे काम करना पड़ता था घंटों।
तो वो जब रियाजत हो जाती है तो वो तो एक वो बन जाता है ना सारा सांचा। इतनी सारी बारीकियां हैं आर्ट्स में, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, सीखने के बाद मालूम होता है कि कितना इल्म है जो हमने सीखा है और कितना और रहता है। इल्म तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। इट्स जी अ वेल, you know, when they say well of knowledge, it's really a well. जी नहीं जी, बहुत बहुत मजा आया और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और एज यूजुअल आपसे बहुत सीखा भी, और आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा लाएंगे शो पे। जाते जाते आप हमें या हमारी जो ऑडियंस है, स्पेशली द यंग पीपल, उनको आप कोई ऐसा मैसेज दें जो आप समझती हैं कि आपके और जिया साहब के दिल से बहुत करीब है वो बात। भाई हमेशा वो मेरी ये तारीफ करते थे कि ये बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए कि उन्हें खुद मेहनत का अंदाजा था, वो खुद कर चुके थे, इसलिए उन्हें वो लोग पसंद आते थे जो मेहनत करते। और मैं यही कहूंगी कि जितने भी यंग लोग अपने किसी भी काम में हैं इन्वॉल्व, उनको मैं ये कहूंगी डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स प्लीज। आप शॉर्टकट्स ना लें क्योंकि चैलेंज लें, इसको चैलेंज समझें। कोई चीज जो आपको मुश्किल लगती है उसको, बल्कि उसको ही चुने, इसलिए कि आसानियां पैदा मुश्किल के बाद होती है। शुरू में अगर हम आसानी पैदा कर दें तो मुश्किल की तरफ तो जाएंगे ही नहीं हम। तो जो आपको लगे कि ये नहीं हो सकता उसको आप कहें कि ये हो सकता। तो पॉसिबल, चैलेंज जी। the world of possibilities opens up for you if you say कि ये भाई वो पीक पे जाना है, कैसे जाऊं, पीक पे मत देखें, look at each step which is the process। जो फैज साहब ने कहा है कि हर गांव पे मंजिल है। You are not supposed to look at the peak, you are supposed to look at the each step which is taking you, one day you'll be there and you wouldn't even know। आमीन। Thank you so much for all your time, Nahid ji. Thank you so much, thank you Sophia so much, thank you। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम ही हो, जिंदगी तो हम ही हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम ही हो, आदमी तो हम ही हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्तहाए आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। तुम अभी से डरते हो, अभी तो तुम ही हो, अभी तो हम भी हैं।